Assalamualaikum students, hope you all are fine. I am Kiran Fatma and in my video series I will cover chemistry syllabus for matric and FSC students. And my first video is about chapter number 1 from class 9th, and the chapter name is Fundamentals of Chemistry. In this chapter we will learn about branches of chemistry, we will learn about matter. Matter means we will learn about elements, compounds and difference between compounds and mixture, molecules and its types, free radical, their generation, and ions. In ions we will study about cations and anions, and then we will study about difference between molecule and atoms, atom and ion, and free radical and ions. And we will study about valency, that how to write the valency and what is the valency of ionic compounds or covalent compounds. And we will study about formulas. The formula which will be explained in detail is chemical formula, that how to write a chemical formula or why chemical formula is needed. And chemical formulas are of two types. First one is empirical formula and the second one is molecular formula. Second one is molecular formula, and in this chapter we will also study about moles, and in mole we will study about gram atom, gram ion, gram molecule, gram formula and Avogadro's number and some calculations. Calculation means how to calculate number of moles, how to calculate the molecular mass, how to calculate number of particles, some basic formulas in chemistry. And also we will study about relative atomic mass unit, atomic number and mass number. And today's video will focus on branches of chemistry. Now let's study about branches of chemistry. The branches of chemistry which are explained in 9th class books are of 8 types. First one is physical chemistry. Physical chemistry. What is physical chemistry? First of all, I will explain the definition of chemistry. What is chemistry? And before that, I will explain that what is science. Science is the study of nature. The knowledge that helps us to understand this world is called as science. The knowledge which is based on observations and experiments is called as science. And what is chemistry? Chemistry is the branch of science that deals with the composition, structure, properties and chemical reactions of matter. For example, if we have a water molecule, अगर हमारे पास पानी का एक molecule है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं. अगर हम इसकी composition बताएं, if we say that what is the composition of water, then we will explain that water is made up of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. It is the composition of water molecule. And what is its structure? Its structure is tetrahedral. It is sp3 hybridized. And what are the properties of water? Water is colorless, odorless, tasteless. It has surface tension. It has maximum heat capacity. Its boiling point is 100 degrees Celsius. Its freezing point is 0 degrees Celsius. And what are the chemical reactions? When water is electrolyzed or when current is passed through water molecules, then it is converted into hydrogen and oxygen gases. It is a chemical change. The decomposition of water is a chemical change, not the physical change. This is all about chemistry. What is physical chemistry? Physical chemistry is the branch of chemistry that deals with the composition and physical properties of matter and the relationship between them and changes in them. For example, in physical chemistry we study about behavior of solid, liquid and gases. For example, when water is heated, जब पानी को गर्म किया जाता है तो ये भाप में कन्वर्ट हो जाता है. It is converted into vapors or in steam. And when it is cooled down
और व्हेन इट इज फ्रीज्ड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू आइस व्हिच इज अ सॉलिड। तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो फिजिकल स्टेट से बिलोंग करती हो, ठीक है। यानी फिजिकल स्टेट पानी की चेंज होती है, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो भाप में तब्दील हो जाता है, जब आप पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ में तब्दील हो जाता है। तो ये उसकी फिजिकल तब्दीलियां हैं, ये फिजिकल चेंजेस हैं। और इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि एक मैटर है, वो मैटर कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ मैटर की कंपोजिशन यही है ना कि मैटर कैसे बनता है, कंपोजिशन ऑफ मैटर को हम स्टडी करते हैं। फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहेवियर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस क्या है, और फिर हम देखते हैं कि जो आपके पास मैटर है उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर हीट या रेडिएशंस का क्या असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं या इसको हीट देते हैं, when calcium carbonate is heated it is converted into calcium oxide and carbon dioxide gas। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील हो जाता है। तो इसको हम स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। द सेकंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। What is organic chemistry? Organic chemistry deals with all the covalent compounds of carbon and hydrogen। यानी ये सिर्फ किस चीज को स्टडी करेगी, ये स्टडी करती है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन। तो वो कंपाउंड जो के कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती हो, ये सिर्फ उनको स्टडी करती है और उनके कोवलेंट कंपाउंड्स को स्टडी करती है। इसमें हम कोवलेंट कंपाउंड्स का मुताला करते हैं। मोस्टली जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट होते हैं। जितने भी नेचर में मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट इन नेचर है। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। इसको हम फर्दर वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री deals with the covalent compounds of carbon and hydrogen and their derivatives। And now what is derivatives? Derivatives are the compounds which are formed from hydrocarbons by the replacement of one or more atoms। For example CH4 है मीथेन, इसमें से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन माइनस करें तो ये बन जाता है CH3 जो जिसे हम बोलते हैं मिथाइल। और ये जो हाइड्रोजन निकला है अगर हम इसकी जगह पे क्लोरीन लगा दें तो इसे हम बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड जो कि डेरिवेटिव है। ठीक है, जो डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं वो मोस्टली जो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स बनाते हैं उसमें हम मोस्टली हाइड्रोजन एटम्स को, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स के साथ रिप्लेस करके डेरिवेटिव्स हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। और इसका स्कोप कहाँ पे होता है? इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में स्कोप होता है और पेट्रोकेमिकल्स में स्कोप है। एंड द थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस चीज को स्टडी करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स को तो हमने स्टडी कर लिया जो कि कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो। अब जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ना बने हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, या आप ले लेते हैं पोटाशियम क्लोराइड, या आप लेते हैं पोटाशियम ब्रोमाइड, या पोटाशियम आयोडाइड लेते हैं, या कॉपर क्लोराइड लेते हैं, तो ये कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। तो फिर इन कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद ऑल द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन नेचर। अब नेचर के जो मैन मेड भी होंगे, जितने भी कंपाउंड्स हमारे इर्द मौजूद हैं हमारी सराउंडिंग में, उन तमाम कंपाउंड्स में से जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स या उनके डेरिवेटिव्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो उनके अलावा बाकी कंपाउंड्स बच जाते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इट डील्स विद ऑल अदर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ओके,
और इसका स्कोप होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, सिरामिक इंडस्ट्री में और मेटलर्जी में। एंड द फोर्थ वन इज बायोकेमिस्ट्री। अब बायो मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ, एंड केमिस्ट्री से हम मोस्टली क्या मीन लेते हैं? केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन। हम केमिस्ट्री से केमिस्ट्री से हम ज्यादातर रिएक्शन लेते हैं। बायो मीन्स लाइफ। तो बायोकेमिस्ट्री में हम किस चीज को स्टडी करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज उन रिएक्शंस की स्टडी करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होंगे। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टेक प्लेस करेंगे उनको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। ठीक है, इट स्टडीज ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक प्लेस होते हैं उनको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हैं, प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड और सब्स पिगमेंट क्लोरोफिल की मौजूदगी में मिलकर बना देते हैं ग्लूकोज C6H12O6, इसके साथ ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, अब ये इसकी सिंथेसिस हो गई है, इसको भी हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। इसी तरह प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, लिपिड्स, फैट्स और ऑयल सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स हैं उनकी सिंथेसिस और उनके मेटाबॉलिज्म को हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, और इसका ज्यादातर स्कोप होता है फूड और मेडिसिन इंडस्ट्री में। ओके, समझ आ रही है ना? और उसके बाद the fifth one is nuclear chemistry। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री is a branch of chemistry that deals with radioactivity, nuclear processes and their properties। अब radioactivity क्या है? Radioactivity is the spontaneous decay of radiations by through unstable atomic nuclei। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 80 होता है। और रेडिएशन कौन कौन सी इमिट होंगी? रेडिएशंस इमिट होंगी अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस और गामा रेडिएशंस। ओके, उसके बाद न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है। न्यूक्लियर प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं जो कि मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं? न्यूक्लियर प्रोसेसेस में आता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, या न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि यूरेनियम का न्यूक्लियस है, जब इस पे न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है तो ये क्रिप्टॉन और बेरियम में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो अब ये है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। फिशन मीन्स कि एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो टूट के छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह एक और प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं। फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज है, आयोनाइजिंग पावर देखी जाती है कि कौन सी रेडिएशंस पेनिट्रेट करती हैं, कौन सी रेडिएशन ज़्यादा आयोनाइज कर सकती हैं, किनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, किनकी स्पीड ज़्यादा होती है, किनका मैस ज़्यादा होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ठीक है, रेडियोथेरेपी में इसका स्कोप है, फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में इसका स्कोप आता है। ओके, एंड द सिक्स्थ वन इज environmental chemistry। What is environmental chemistry? environmental chemistry में हम स्टडी करते हैं environment के कंपोनेंट्स को। अब environment के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? हम मोस्टली कहते हैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। तो वो जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनको हम environmental chemistry में स्टडी करते हैं। बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं एनवायरनमेंट में, जैसा कि प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स। और एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जैसा कि हम कहते हैं एयर, सॉइल, टेम्परेचर, हीट, वाटर। तो ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम इसमें एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को, इसके अलावा एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स में हम कहते हैं एटमॉस्फेयर है, बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है। इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे 10th क्लास में और सेकेंड ईयर क्लास में। ओके, और इसके बाद आती है
एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ सैंपल, कि हम पहले सैंपल को सेपरेट करते हैं, सैंपल को सेपरेट करने के बाद जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई, इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि जो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं उनकी जस्ट आइडेंटिफिकेशन की जाए तो वो क्वालिटेटिव, और अगर उसके साथ साथ उनके अमाउंट्स को डिटरमिन किया जाए तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, इसका सॉइल, वाटर और क्लिनिकल एनालिसिस में इसका स्कोप है। तो कौन कौन सी होती हैं? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक